बेटियां हैं अनमोल उपहार, बेटियां हैं अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज आप एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक स्पीच आप सुनने जा रहे हैं जो हर एक लड़कियों के लिए वर्तमान दौर में, इस आधुनिक दौर में एक उनका अधिकार ही नहीं, हम कहें हक ही नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसके बिना हमारी बेटियों को, हमारी लड़कियों को, हमारी बहनों का जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, मैं आपको इस क्लासरूम एक्टिविटी के माध्यम से गर्ल्स एजुकेशन को बताने के लिए, गर्ल्स एजुकेशन को फोकस करने के लिए हमारे बीच है हमारे आपकी ही क्लास की एक छात्रा जिनका नाम है प्रियंका। सो मैं चाहूंगा प्रियंका आप आए और अब गर्ल्स एजुकेशन के बारे में आपकी क्या थॉट है, आप क्या चाहते हैं, गर्ल्स का एजुकेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बेटियों को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, बेटियां पढ़ेंगी तो क्या होगा, नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, पूरी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बड़ा स्वागत है आपका, आइए, टेक इट, होल्ड इट बेटा, नाउ। Hello everyone, I am Priyanka Kumari from class 8. Today I am here to deliver a short speech on girls education. Education is most necessary for everyone, but ancient people did not know the importance of education. Day by day people give education to boy, but it is not good. Education is also necessary for girls. Education play a big role in improving the state girl on against the discrimination. At one time, girls' education is forbidden, but today girls are highly educated and high qualified professional and scholar. Some social reformers like Dayanand Saraswati and Ishwar Chandra Vidyasagar encourage the cause of girls' education. All of these reformers emphasize that a nation can be progress only when the girls are educated. Girls' education is the basis of constitution, and many schemes are launched by Indian government for girls' education, like the National Literacy Mission, Saksar Bharat Mission, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ अभियान, राइट टू एजुकेशन एंड इक्वल remuneration, etc. The National Literacy Mission and Saksar Bharat Mission are launched for improving the literacy rate of women. The Sarva Shiksha Abhiyan is launched by Indian government for educate the children under the age of 14 years age group, and the right to education is launched for every boy and girl on the age of 6 to 14 years age group. This program is launched. This program is launched especially for girls and children with their special need. Our country literacy rate is 64% and 37% of men and women, and thus you will find that girls are discriminated when they come to a schooling, and when they come to a schooling. Traditionally educative girls are considered as unnecessary and a waste of time and money. Girls would only take care of house, but when we look at the board exam result, it is evident that girls do better than boy in exam. It proves that girls are able to contribute successfully in a society. In a society today, society from men and boy changed. Some remarkable women like Nelson Mandela and Ruqayya Swat Hussain
was spread the women education from his progressive and radical thought. Ishwar Dayanand Saraswati he opened many school and colleges to promote the girls. Our country give the opportunity to equal opportunity to boy and girl for education. That's all. Thank you. So, grand clapping for her first. वेरी नाइस बेटा, आपने बहुत सारी चीजों को बताया, कई सारे हमारे गर्ल्स एजुकेशन में। सबसे पहले तो आज लड़कियां जिसकी वजह से आप बेटा यहां पर बैठे हो, उस महान माता का नाम है, उस महान आत्मा का नाम है ज्योतिबा फुले, जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और परिणाम स्वरूप आज देख रहे हैं हमारे क्लास में हम ये कह सकते हैं कि लड़कों से कहीं ज्यादा तादाद में लड़कियों की संख्या है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लड़कियां खुद के लिए जोरदार ताली बजाएंगे अपने लिए। दोस्तों, आपने इस स्पीच के माध्यम से जरूर समझा होगा, लड़कियों की शिक्षा वर्तमान समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जब लड़कियां पढ़ लिख लेगी तो ये हमारी सोसाइटी को सुधारने में एक अहम भूमिका निभाती है। लड़कियां जिस घर में पैदा लेती है, उस घर की इज्जत, उस घर की जिम्मेवारी इनके कंधों पर होती है। शादी विवाह के बाद जिस घर में जाती है ये हमारी बेटियां, वहां भी ये शिक्षा का अलग जगाती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी सूचना है। हम अपने अभिभावकगण से, हम अपने पेरेंट्स से जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, आप अपनी बेटियों की उड़ान में बाधा न बने, आप उनकी शिक्षा के लिए हर कोशिश कीजिए। जैसा इन्होंने माध्यम से बताया, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भी कई तरह की सरकारी हमारी स्कीम्स योजनाएं हैं, जो हमारी छात्रवृत्ति योजना है बहुत तरह की। हमारी बिहार सरकार ने 10th पास करने पर आई थिंक 10,000, इंटरमीडिएट में आई थिंक फ्रेंड्स 25,000 और ग्रेजुएशन में 50,000 आई थिंक स्कॉलरशिप के रूप में देती है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज अभिभावकों को के सामने एक चुनौती है कि वो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए। हम इस स्पीच का कंक्लूजन एक कोट के माध्यम से करना चाहेंगे, जीवन की असली दौलत उसी ने पाई है, जीवन की असली दौलत उसी ने पाई है जिसके घर में लक्ष्मी बनकर बेटी आई है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।